Hello all my lovely soul, welcome to my channel. Today we are going to see who is going to propose you in near future. It's a general reading plus also a suggested topic. So take only those messages which resonates with you and leave the rest. Like as always, we have two groups, group number 1 and group number 2. Use your intuition and choose any group which you have drawn into, and I will meet you at group number 1. Hello group number 1. Today we are going to see who is going to propose you in near future. So we have Strength card. And once again Strength card come 2 times. Here the next is the High Priest, 7 of Wands, Knight of Swords, the Emperor card, 3 of Swords, Control, Transformation card, Healing and Past Lives. This person is very courageous, determined and possesses inner strength. He or she is persuasive in nature. Their personality is composed. Irrespective of gender, they are physically strong. They are someone who have the ability to win over their enemy. Along with firmness, he or she is also know how to be gentle. As a person, they don't like to compromise with their dignity and pride. He or she is also confident in nature. With the High Priest, they are wise and also a kind soul. He or she is a good advisor. They respect their tradition and stick with their moral values. In their society, they are respected very much. Their other characteristics are like he or she is stable, reliable. This person will make you feel very guided, supported. Like I said earlier, this individual is stubborn. When they decide or believe in something, no matter what happens, they always stand up for it. He or she is not afraid of any challenges or opposition. He or she is very fast with whatever they do. They are a very quick thinker. This person is always action oriented. Their mind is clear and their looks and personality is very charming. They have excellent communication skills. As they are very quick, sometimes they are prone to easily getting bored. They are very ambitious. He or she could be in an authority position of any organization. In other words, they are authority figure. Or they have their own business. There's a chance that in their past they were cheated by their loved ones or maybe their ex. This incident broke their hearts and they started to become controlling. This person has to lose control. They want each and everything according to them, and when something goes wrong, they become restless. But with the Transformation card, I'm sensing that in their present moment, he or she is going through the process of transformation. They are starting to let go of their controlling nature and allow things to be as they should be. Right now, many things are happening in this person's life. As I mentioned earlier, that this person is transforming themselves. Here, I can say that currently, he or she is in a healing stage, and after this stage, there is a possibility that this person is going to propose you. And lastly, with the past lives card, here I am sensing that for some of you, you may have past life connection with this person, and for some of you, he or she could be your ex. Now, if we talk about your zodiac sign, the most prominent zodiac signs I am sensing here is Leo, this fire sign, and other zodiac signs could be air sign like Libra or earth sign. And if we talk about their profession, they could be in management post, or they could be some advisor or counselor, or they may have their own business. Now we are going to see some alphabets. These alphabets could be their first name, last name, or middle name initial, or maybe their last names. So I'm going to see some alphabets. So the first alphabet we have is Y, then U, A, one again U, B, A, then K, J, M, J, S, C, then P. So this could be their first name, last name, or middle name initial. So that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Hello group number 2. Today we are going to see who is going to propose you in near future. So we have the Star card, Queen of Wands, Temperance card, the Devil card, Stress card, Isolation card, Friendliness, Traveling, King of Wands, 6 of Pentacles, 4 of Pentacles, and lastly 10 of Cups.
So, with the star card, this person is very knowledgeable and someone hopeful for the future. He or she encourages and inspires other people. If we talk about their physical features, he or she is very graceful, gentle and calm. They are someone who is very positive in every situation and someone who is physically strong and healthy. They could have blue or hazel eyes. He or she is a freedom lover, active and decisive and has great creative skill. They are practical and also a nature lover. This person is charismatic, confident and possess a commanding aura. Their looks radiates warmness and they are very attractive. He or she is a balanced person with calculative mind. They are patient and someone who never lost their cool in any odd situation. For some of you, this person could be very seductive in nature. Their appearance is alluring, powerful and attracts others towards them. He or she could be manipulative sometimes. They focuses only on material aspects of life. With stress card, here I'm sensing that there's a possibility that this person seems to take too much responsibility on his or her shoulder and it negatively impacts their mental peace. This person is someone who wants to be in control of their emotions. They don't like to show their emotional vulnerability in front of others. In other words, he or she don't even want to admit their true emotions and pains. But when they are alone and those pains become unbearable, he or she silently sheds their tears. For some of you, this person could be your close friend. Though personality-wise, you two are different from one another, but together your bond is very strong and your friendship inspires others. This person lives in here and now. In their life, they have encountered a lot of changes. He or she believes that life is the another name of adventure, growth and change. As an individual, they are mature. He or she often travels and also a well-informed person. They are kind and generous, someone who invested their money for good cause. If we talk about their professional life, he or she is someone who may be a leader and loves to work in a team. Generally, you will see a friendly smile on their face. He or she is the believer of equal give and take. For a very specific viewer, your upcoming person could be a little bit possessive. He or she focuses more on material stability and conscious and responsible individual when it comes to money. And for others, your person will be emotionally fulfilled. He or she is living a happy family life. You can see contentment on their faces. They also have a good friend circle. Now, if we talk about their zodiac sign, they could be air sign like Aquarius, fire sign like Leo or earth sign. And if we talk about their profession, they could have their own business, or maybe they work in fire service agency or any emergency kind of services. Now we are going to see some alphabets. This could be their first name, last name or middle name initial. So what we have is the first alphabet is T, K, U, V, R. This is R. Then S, E, B, C, again S. So that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will meet you in my next video. Till then, bye bye. हेलो और माय लवली सोल, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि नियर फ्यूचर में आपको कौन प्रपोज करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, साथ ही साथ ये एक सजेस्टेड टॉपिक भी है, तो आप वही मैसेजेस ले जो आपके साथ रेजोनेट करते हो। और हमेशा की तरह हमारे पास दो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आप अपना इंट्यूशन यूज़ करके इनमें से कोई भी एक ग्रुप चूज़ कीजिए। मैं आपको ग्रुप नंबर 1 में मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आज हम देखने के जा रहे हैं नियर फ्यूचर में आपको कौन प्रपोज करने वाले हैं। तो हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड 2 बार आया है। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्ट, 7 ऑफ वंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंट्रोल, ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग एंड लास्टली पास्ट लाइफ्स। यह पर्सन एक बहुत करेजियस पर्सन है और इस साथ ही साथ दृढ़ता संपन्न व्यक्ति है, और उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, वो अपने आप में बहुत है। और अगर हम उनकी दूसरी नेचर के बारे में बोले तो एक पर्सुएटिव इंसान है, जो भी अगर वो किस इंसान को कैसे पर्सुएट करना है या फिर किसी भी सिचुएशन में कैसे कोई भी चीज़ को खुद की तरफ कैसे मनवाना है, ये इंसान को बहुत अच्छे से आता है। और उनकी पर्सनैलिटी बहुत शांत है, वो एक शांत व्यक्तित्व के इंसान है, और उनके जेंडर कोई भी क्यों ना हो, लेकिन वो फिजिकली या शारीरिक रूप से बहुत सक्षम है और स्ट्रॉन्ग है। वो एक ऐसे इंसान है जो अपने दुश्मनों के ऊपर विन करने के लिए ताकत रखते हैं।
और दृढ़ता के साथ साथ वो एक ऐसे इंसान है जो स्वभाव में कब कोमलता लाना है इस इंसान को बहुत अच्छे से आता है। और जब उनकी डिग्निटी की बात आती है या फिर उनकी गरिमा की बात आती है तो एक ऐसे इंसान है जो अपने गरिमा के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे और वो अपने आप को लेकर बहुत गौरवान्वित पर्सन है, या फिर ये कहूँ कि अपने आप पे उन्हें गर्व है। और उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत कॉन्फिडेंट है। हाई प्रीस्ट के साथ वो एक ऐसे इंसान है जो नॉलेजेबल है, वाइस है, और साथ ही साथ अगर उनकी सोल बहुत काइंड है, वो एक गुड एडवाइज़र है। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए दूसरे से अगर आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत हो तो वो एक ऐसे इंसान है जिनसे आप अच्छी एडवाइस पा सकते हो, या फिर ये इंसान आपको गुड एडवाइस दे सकते हैं। अपनी परंपरा को हमेशा सम्मान करते हैं और साथ ही साथ जो उनकी मॉरल वैल्यू है उनके लिए हमेशा अपनी मॉरल वैल्यू को हमेशा मान के चलते हैं। एक ऐसे इंसान है और वो सोसाइटी में एक ऐसे पोजीशन है जहाँ पे लोग उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और अगर हम दूसरी क्वालिटीज़ की बात करें ना तो वो एक ऐसे इंसान है, उनकी पर्सनैलिटी स्टेबल है। वो ऐसे इंसान है जिन पे आप रिलाई कर सकते हो, और साथ ही साथ वो इंसान आपको हमेशा गाइडेड और सपोर्टेड महसूस करवाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बोला था, ये इंसान थोड़े स्टबर्न भी हो सकते हैं, या फिर एक इंसान है जिन्होंने अगर ज़िंदगी में कुछ ठान लिया है ना वो उसे पूरा करते ही रहते हैं। कभी भी चैलेंज से या फिर अपोजिशन से कभी भी नहीं डरते। वो एक गोल ओरिएंटेड पर्सन है, और साथ ही साथ वो अपनी जब भी कोई भी काम वो करते हैं ना वो काम बहुत फर्स्टली करते हैं, या फिर ऐसे कहूँ कि वो जो भी करते हैं या फिर वो बात भी करते हैं या फिर कोई डिसीजन भी लेते हैं अपनी लाइफ में, वो बहुत फटाक से लेते हैं। उनका माइंड बहुत क्लियर है। वो अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में क्या करना चाहते हैं, उनका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है। अगर हम उनकी लुक्स या पर्सनैलिटी की बात करें ना तो उनका लुक्स और पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है, और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के साथ वार्तालाप या फिर कहूँ कि बातें करना, तो वहाँ पे वो एक्सेलेंट है। जैसे कि मैंने बोला कि ये पर्सन थोड़े क्विक है, जो भी करते हैं बहुत फास्टली करते हैं, तो यहाँ पे ये चांसेस है वो कभी कभार अपनी लाइफ में बहुत जल्दी बोर होने के चांसेस यहाँ पे है। और एम्पायर कार्ड के साथ वो बहुत एम्बिशियस है। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट पोस्ट या अथॉरिटी पोजीशन में रह सकते हैं, और साथ ही साथ ना ये भी हो सकते हैं कि उनका खुद का कोई बिजनेस हो। और यहाँ पे मुझे थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपने पास्ट में उनके कोई नियर डियर लोगों ने उनके साथ चीट किया है या फिर उन्हें कोई धोखा दिया है, धीरे धीरे वो कंट्रोलिंग नेचर के बन गए हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या फिर अपनी ज़िंदगी की दूसरे चीज़ों पे हो। और वो जब भी अपनी किसी भी सिचुएशन में अपना कंट्रोल लूज़ कर देते हैं या फिर कंट्रोल खो देते हैं ना, तभी वो सिचुएशन में उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो हर चीज़ अपने कंट्रोल में चाहते हैं, और जब भी कोई भी सिचुएशन उनके अगेंस्ट जाते हैं वो रेस्टलेस बन जाते हैं अचानक से। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि प्रेजेंट मोमेंट में ना ये इंसान बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ गुजर रहे हैं, और उन्होंने जो उनका कंट्रोलिंग नेचर है ना वो धीरे धीरे से उन्होंने उस कंट्रोल को ढील दी है, या फिर अपनी कंट्रोलिंग नेचर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और राइट ना उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और जैसे कि मैंने पहले बोला कि वो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि करंट सिचुएशन में वो हीलिंग स्टेज में है, और जब ये हीलिंग स्टेज कंप्लीट होगा, जब या फिर वो अपने पास्ट ओन्स को हील करेंगे, तब वो जाके यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनता है कि ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। और लास्टली पास्ट लाइफ कार्ड के साथ यहाँ पे कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, और कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे ये आपके एक्स भी हो सकते हैं ना। अगर हम उनकी जोडाइक साइन के बारे में बोले तो यहाँ पे उनके शायद ऐसा हो सकता है लियो हो सकते हैं, फायर साइन लाइक लियो, अर्थ साइन, एयर साइन। यहाँ पे मुझे डोमिनेंट ज़्यादा लियो दिखाई दे रहा है, उसके बाद अर्थ साइन है और एयर साइन भी है। एयर साइन जैसा लिब्रा हो सकते हैं यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए। अगर हम उनकी प्रोफेशन के बारे में बोलें तो ये शायद उनका कोई खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर वो काउंसिलर एडवाइज़र ऐसे पोजीशन में हो सकते हैं, या फिर उनके कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पोस्ट में वो हो सकते हैं। अभी हम कुछ अल्फ़ाबेट्स देखेंगे, शायद ये उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम इनिशियल हो सकते हैं। तो हमारे पास लेटर है S Y M A, once again A U J C B K F। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। वो अपनी डे टू डे लाइफ में ऑफन ट्रैवल करते हैं और वो वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन है। उनकी नेचर बहुत काइंड है और साथ ही साथ वो एक जेनरस पर्सन भी है। जब
वो खुद की ज़रूरतों के साथ साथ दूसरे की ज़रूरत को भी हमेशा ख्याल में रखते हैं और जो अपने रिसोर्सेस है उनको दूसरों की भलाई के लिए या फिर गुड कॉज के लिए वो इन्वेस्ट भी करते हैं। अगर हम उनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो एक ऐसे इंसान है, शायद वो एक ऐसे लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हैं या फिर वो एक ऐसे इंसान है जहाँ पे वो वर्क करते हैं ना, वहाँ पे उन्हें टीम में वर्क करना या फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना उन्हें बहुत पसंद है। अगर आप जब भी उनको देखोगे ना तो उनके फेस में एक हमेशा फ्रेंडली स्माइल देखेंगे आप। वो एक ऐसे इंसान हैं जो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। और यहाँ पे कुछ एक वेरी स्पेसिफिक व्यूअर के लिए यहाँ पे ये है पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पर्सन एक पॉजिटिव पर्सन हो सकते हैं और वो अपने मटेरियल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं दूसरे चीज़ों के मुताबिक। और यहाँ पे जहाँ तक बात मनी की आती है वो एक बहुत कॉशियस और रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी है। और बाकी लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन एक बहुत इमोशनली फुलफिल्ड पर्सन है और उनकी फैमिली लाइफ, अगर हम उनकी फैमिली लाइफ को देखें, उनकी फैमिली लाइफ बहुत हंसी खुशी से जा रही है, गुजर रही है। और फिर दूसरे शब्द में कहूँ, उनकी फैमिली लाइफ बहुत हैप्पी है। जब भी आप उनको देखोगे उनके चेहरे पे आप कॉन्टेंटमेंट देखोगे और जो उनके फ्रेंड सर्कल है वो एक बहुत उनकी फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छी है। और अगर हम उनके जुराइक साइन के बारे में बोले तो यहाँ पे शायद ये हो सकते वो एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, और लाइक फायर साइन लियो, अर्थ साइन लाइक कैप्रिकॉर्न। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे अर्थ साइन, फायर साइन और एयर साइन ज़्यादा महसूस हो रहा है इस ग्रुप से। अगर हम उनकी प्रोफेशन की बात करें ना तो यहाँ पे ये शायद ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनका खुद का बिजनेस हो और मे भी ये किसी फायर एजेंसी में वर्क करते हैं या फिर कोई भी इमरजेंसी सर्विस में उनका जॉब है। हम अभी अल्फ़ाबेट की तरफ जाएंगे, देखेंगे। अब हम कुछ अल्फ़ाबेट्स देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये शायद ऐसे हो सकता है उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम इनिशियल भी हो सकते हैं। तो हमारे पास है अल्फ़ाबेट R, E, S, B, V, L, T, C, S, K एंड लास्टली Q। सो ये सब शायद उनके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम इनिशियल हो सकते हैं। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, आज हम देखेंगे कि नियर फ्यूचर में आपको कौन प्रपोज करने वाला है। तो हमारे पास है स्टार, क्वीन ऑफ वंस, टेम्परेंस, द डेविल, स्ट्रेस, आइसोलेशन, फ्रेंडलीनेस, ट्रैवलिंग, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्टली 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे स्टार कार्ड के साथ ये इंसान बहुत नॉलेजेबल होगा और साथ ही साथ एक ऐसे इंसान है जो अपने फ्यूचर के लिए हमेशा होपफुल रहते हैं और दूसरे लोगों को इनकरेज और इंस्पायर भी करते हैं। अगर हम उनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये इंसान दिखने में बहुत ग्रेसफुल है और जेंटल, साथ ही साथ काम भी है। वो एक ऐसे इंसान है जो भी कोई सिचुएशन क्यों ना हो वो हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हैं और फ्रीडम लवर भी है। साथ ही साथ उनके पास बहुत आर्टिस्टिक टैलेंट भी है। उनका व्यक्तित्व आकर्षणीय है और साथ ही साथ वो बहुत कॉन्फिडेंट है और उनकी जो ऑरा है ना वो एक कमांडिंग ऑरा है। उनका लुक्स बहुत अट्रैक्टिव है और साथ ही साथ वो उनका नेचर बहुत वार्म है। वो एक ऐसे इंसान है जो बहुत बैलेंस्ड है अपने आप में और उनका माइंड बहुत कैलकुलेटिव है। अगर हम उनकी दूसरे क्वालिटी के बारे में बोले तो वो एक पेशेंस इंसान है और जो ऐसे इंसान है जो किसी भी सिचुएशन में अपने बोलते हैं ना, जो अपने आपा नहीं खोते हैं, किसी भी सिचुएशन में हो हमेशा अपने आप पे हमेशा कंट्रोल लेता है।
और कुछ में व्यूअर्स के लिए डेविल कार्ड के साथ ये पर्सन का नेचर उनका सेडक्टिव हो सकता है और जो उनका अपीयरेंस है वो अलोरिंग है। दूसरे को हमें उनकी ऑरा ही एक मिस्टीरियस है और पावरफुल है जो दूसरे को हमेशा उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। और उनका नेचर ऐसा भी थोड़ा मैनिपुलेटिव भी हो सकता है और जो एक ऐसे इंसान है जो अपने मटेरियल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में। और स्ट्रेस कार्ड के साथ यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ना कभी कभार अपने आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले लेते हैं और जिसकी वजह से वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो ज़्यादा बोझ उनके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो वो ऐसे इंसान है ना जो अपने को कभी भी अपना इमोशंस बाहर दिखाना पसंद नहीं करते, या फिर ये कहूँ दूसरे शब्द में ये कहूँ, ये इंसान अपने आप कंट्रोल इमोशंस पे हमेशा कंट्रोल रखते हैं। मे भी शायद उनके बचपन में उनके पेरेंट्स ने सिखाया था या फिर उन्हें अपने आसपास की दुनिया को देख के या सोसाइटी को देख के उनका मेंटेलिटी ऐसा हो गया है कि वो कभी भी अपने इमोशंस को, अपनी ट्रू इमोशंस को या फीलिंग्स को दूसरों के सामने कभी दिखाते भी नहीं और ख़ुद में भी एडमिट नहीं करते। लेकिन जब अपने पर्सनल स्पेस पे होते हैं ना, जब वो अपने खुद के साथ होते हैं, उनके आसपास कोई नहीं होता है, और जब उनकी जो फीलिंग्स उन्होंने खुद अपने साथ दबा के रखे हैं ना, जब वो फीलिंग ज़्यादा उभर के आती है तो वो अकेले कभी कभार रो लेते हैं। वो एक ऐसे इंसान है। और यहाँ पे कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए ये इंसान शायद आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं या फिर आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं और आप दोनों की पर्सनालिटी थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन भले ही आप दोनों की पर्सनालिटी कितनी डिफरेंट की ना हो, लेकिन आप दोनों का जो बॉन्ड है एक दूसरे के साथ, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप दोनों की फ्रेंडशिप दूसरे को हमेशा इंस्पायर करते हैं। और वो एक ऐसे इंसान है जो अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस देखे हैं और वो ये बिलीव करते हैं कि ज़िंदगी का दूसरा नाम ही चेंज, ग्रोथ और एडवेंचर है। एज ए पर्सन वो बहुत मैच्योर है। वो अपनी डे टू डे लाइफ में ऑफन ट्रैवल करते हैं और वो एक वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन है। उनकी नेचर बहुत काइंड है और साथ ही साथ वो एक जेनरस पर्सन भी है। वो खुद की ज़रूरतों के साथ साथ दूसरे की ज़रूरत को भी हमेशा ख्याल में रखते हैं। जो अपने रिसोर्सेज से उनको दूसरों की भलाई के लिए या फिर गुड कॉज के लिए वो इन्वेस्ट भी करते हैं। अगर हम उनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो एक ऐसे इंसान है, शायद वो किसी लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हैं या फिर वो एक ऐसे इंसान है जहाँ पे वो वर्क करते हैं ना, वहाँ पे उन्हें टीम में वर्क करना या फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना उन्हें बहुत पसंद है। अगर आप जब भी उनको देखोगे ना तो उनके फेस में हमेशा फ्रेंडली स्माइल देखेंगे आप। वो एक ऐसे इंसान हैं जो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। और यहाँ पे कुछ एक वेरी स्पेसिफिक व्यूअर के लिए यहाँ पे ये है पॉसिबिलिटी, ये है कि आपके पर्सन एक पॉजिटिव पर्सन हो सकते हैं और वो अपने मटेरियल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और यहाँ पे जहाँ तक बात मनी की आती है, वो एक बहुत कॉशियस और रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी है। और बाकी लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन एक बहुत इमोशनली फुलफिल्ड पर्सन है और उनकी फैमिली लाइफ, अगर हम उनकी फैमिली लाइफ को देखें, उनकी फैमिली लाइफ बहुत हंसी खुशी से गुजर रही है। और फिर जब भी आप उनको देखोगे, उनके चेहरे पे आप कॉन्टेंटमेंट देखोगे। ये फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छी है। और अगर हम उनके जुलाई साइन के बारे में बोले तो यहाँ पे शायद ये हो सकते हैं, वो एयर साइन हो सकते हैं एक्वेरियस, और लाइक फायर साइन लियो, अर्थ साइन लाइक कैप्रिकॉर्न। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे अर्थ साइन, फायर साइन और एयर साइन ज़्यादा महसूस हो रहा है इस ग्रुप से। अगर हम उनकी प्रोफेशन की बात करें ना तो यहाँ पे ये शायद ऐसे इंसान होते हैं जिनका खुद का बिजनेस हो और मे भी ये किसी फायर एजेंसी में वर्क करते हैं या फिर कोई भी इमरजेंसी सर्विस में उनका जॉब है। सकता है उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम इनिशियल भी हो सकते हैं। तो हमारे पास है अल्फ़ाबेट R, E, S, B, V, L, T, C, S, K एंड लास्टली Q। सो ये सब शायद उनके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम इनिशियल हो सकते हैं। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।